Yes, good afternoon, everyone. And keep your camera in the active mode. Yes, everyone is requested to keep your camera in the working mode. So today we will discuss a few more operations and revise the operations on dictionary. And I hope that you all are practicing this at home also. So at any point of time during the class, I see someone without camera. So I will not intimate the person and I will remove that person from the class. So everyone is requested again to keep your camera in the active mode.
Yes, I am requesting again that few students, Tarun Jot, Veer Pratap, Ishan Kishore, Aruman, and Stephen, please keep your camera. So earlier we were focusing on the dictionary. So this is how we are, if we have to use the list and the tuple inside a dictionary. Clear? So how we can make use of list and tuple inside a dictionary. So first, in the first example, you can see here, we have created here a dictionary. So the first key is fruit and the second key is vegetable. And in the first key, we have made use of the list. And in the second key, you can see here vegetable, and we have made use of a tuple. So this is how we can make use of list and tuple inside a dictionary. Now the next important question is how we are going to access the members in a tuple and list. तो जैसे let's say मेरे first जो है the first we access the key fruit. Clear? And I am going to access the apple. Now you know the apple's index value is 0. Clear? So by this way we can access the apple. And similarly, if I have to access the next element, orange, so just change the index value. Clear? So as you all know that list and tuple are ordered data type. So we can access their elements using the index value. And how we can access the item in dictionary by using the key. So first element is the key, and second is the index value of list. Similarly, if I have to access a element of the tuple, clear? So what I need to do, I have to just first mention the key value. So key value here is vegetables. Clear? And let's say I am going to access greens. Clear? So for accessing greens, its index value is basically 2. Clear? And you just run this one, and here you can see you are finding the complete dictionary, and in the second you are getting the member of this tuple, that is greens. Clear? So this is how we have to access. First we have to mention the key, and then we have to basically access the index value. Clear? So this is the first thing that we have done. The second important point here is that is how we are going to access and we are going to update the existing item. How we are going to update the existing item inside the dictionary. Clear? So as you can see here, we have created a dictionary, and the name of the dictionary is user. First key value is name, and Christine has been assigned, and the second key value is age, and this is the value, corresponding value it is. And you can see here that I want to update the age of the candidate. So first I need to access what I am going to access. I am going to access the age, that is the key value, and then I am going to assign a value to this one. Clear? So this is the way of basically updating the value of a dictionary. So update the existing item. How we can update the existing item? So as you can see here, in updating the
existing item, we have to mention the key value, and then we have to apply the corresponding value to update that. Clear? The earlier operation that we have already covered in dictionary, the next operation is how we are going to add an item in a dictionary. So as you can see, in this dictionary we have name and age, and I want to enter the height of, clear, height will be acting as a new key inside the existing dictionary, and the dictionary is user. Clear? So now you can try, clear, everyone can try and try to make a addition into this, that enter the address of the user. So everyone can make a try how to enter the address of the candidate. Yes, so this is the task, everyone try to do this one. How we are going to so I am again sharing the screen, and you can note down. We want to add here the address inside the dictionary. So this operation is basically how to add the item inside the dictionary. Clear? तो ये बहुत important है that you basically are practice all these elements. ठीक है, जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे. यस तरुणजीत, आप करते हो कभी प्रैक्टिस कभी? यस तरुणजीत. नो सर. हाँ, नो सर, ये यस सर. Yes, so still there are 2-3 students are still left. They are not using the cameras. Aruman, Stephen. सर स्क्रीन शेयर करना सर. Done, sir. Clear? So how we are going to do this? User, and let's say we want to enter the address of the user. And hold on. Clear? And you just press this one and print the dictionary. Clear? So as you can see here, that we have entered the first we have entered the height of the candidate, and then we have entered the address of the candidate. So this is how we can add the address. Yes, so is it clear how we are going? So these are the basic operations that we are doing today. How to add a item, how to basically update an item. Clear? And the next operation we will perform is now
As you can see in the above example, we have basically made use of a list inside the dictionary. Now, if I want to update an item in the list, so as you can see here in the dictionary, the name of the dictionary is food, and the first key value is fruit, and then we have a list of clear. So if I have to basically update the list, so first of all I have to access the dictionary, then is the key, and then I have to basically assign the index value. Clear? So the index value, like let's say I want to replace the banana with a watermelon. Clear? So if let's say I have to not do this, I have to replace the apple, so I will have to assign the apple's index value. So just run this one. So you can see here that the apple has been replaced by the watermelon. So we have to appropriately mention the index value. Why we are using the index value? Because you all know that in list is a order data type. That's why we are making use of index value. Similar, अगर इस केस में हमारे पास यहाँ पे tuple होता, clear, we are not using here a list, but we are making use of a tuple. So the same we can do it for it. What is the problem here? Clear? So the tuple value is basically the tuple object does not support the item assignment. ठीक है? So what is this is that tuple is basically immutable. तो tuple में हम value को alter नहीं कर सकते. Now the next operation that we have is how to delete a dictionary item. Clear? So जितने operations किए हमने, so कभी practice करके देखे हैं आप लोगों ने? Yes, we have so many students at the bottom line. Aruman, Tarunjot Singh, Mr. Stephen. Yes, Stephen, are you listening? तो बेटा कैमरा ऑन करो अपना. Yes. The next operation that we are going to apply is basically how to delete a item in a dictionary. So first of all, you can see here, we have created a dictionary and we have printed a dictionary. So this is the original dictionary that we have. Now we want to delete the Jupiter. Clear? Jupiter, and whatever the values assigned, maybe the with certain, maybe the radius, or this value is given with regard to the Jupiter. So if we have to delete a Jupiter, clear, so we have to mention the name of the dictionary, and then we have to assign that particular key to the in square brackets. So that's how we are going to delete a particular planet. Let's say I want to delete the Earth now. So by this way, now we can delete the Earth here. Clear? The next operation that we have to apply, अगर यही dictionary है and I have to delete the whole dictionary, so then try this operation. अगर ये मैंने सारी की सारी dictionary को delete करना है, so how I will do that? You can see the dictionary in front of you.
Clear? And now apply the operation, delete the whole dictionary. So I think Bhavya is ready. Yes, other than Bhavya. Yes, Muskan. आप बता सकते हो कोड? सर डिलीट प्लैनेट साइज, डिलीट उसके बाद प्लैनेट साइज डिक्शनरी का नेम। yes. So delete and then mention the. So this will delete the. So this is printing the dictionary because we have printed it. So now it is has deleted. If I am going to print this again, so no, we will get an error. Why the error is there? Because the dictionary and its structure has been deleted here. So these are the basic operations on the dictionary that we have revised today. Okay. So my humble request to everyone is that dictionary looks very easy, but how we are going to apply the basic operations, clear? How to create, first is how to create a dictionary, how to add a element, how to update a element, how to delete a element, how to delete the dictionary. So these are the basic operations that we perform on dictionary, clear? And everyone should be now familiar with all these operations. Still किसी का कोई question related to this one? The operations that we have performed today. And गुलीन ये साथ में सिस्टम रखा हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ जी सर। ये बढ़िया है, साथ साथ में ये हाँ जी सर। ये थ्योरी लैब इकट्ठा ही करी जा रहा है. So you know that is the basically the way. तो जो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा he will be learning in a proper manner. अगर हम इसको theoretically पढ़ते रहेंगे so that will not serve the purpose. So I think almost all the topics are covered with the Python. Clear? So next we will looking at the, maybe we will take up, अगर आप बोलोगे तो Python में से कोई एडवांस टॉपिक भी ले सकते हैं, and otherwise we'll be shifting to MySQL. Yes, Manshika, आप बताओ next what do you want to study after this? वंशिका से पूछ लेते हैं. MySQL. MySQL. ठीक है, MySQL को स्टार्ट करेंगे एंड विल बी टेकिंग अप थोड़े से जो एडवांस टॉपिक्स हैं फ्रॉम दी Python also. We can take up those options also, and we can again go to the MySQL and we'll take up some advanced queries this time. So that you can expose that what sort of queries are there at +2 level and what sort of queries are there in +1. So we'll take up some advanced queries in MySQL. और जो थ्योरी वाले टॉपिक है सो वो भी साथ साथ में प्रिपेयर करने हैं आप लोगों ने. ये नहीं है कि बाद में पता चले कि थ्योरी कोई पढ़ ही नहीं रहा. थ्योरी में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास? यस प्रियंका, आप बताओ. थ्योरी में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है? सर एक एआई का. यस, एक एआई का टॉपिक है. गुड. यस सर. और सर उसके साथ डीडीएल वगैरह सब. डीडीएल तो MySQL में आ गया ना. यस सर, MySQL में. और वो सर उसके जो पार्ट्स हैं जैसे कहाँ कहाँ पर वो यूज होता है, जैसे क्लाउड वगैरह. हाँ हाँ हाँ. तो बेसिकली ये सारे इस सारे यूनिट का नाम क्या था? व्हाट इज द यूनिट दैट प्रियंका इज पॉइंटिंग आउट? यस गुरलीन, आप बताओ ये कौन सा टॉपिक है? ये सर इमर्जिंग ट्रेंड्स है सर. इमर्जिंग ट्रेंड्स है. तो इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर ये सारे टॉपिक थे. क्लाउड था, एआई था, एंड दीज वर ऑल पार्ट्स ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स. एक यूनिट और था थ्योरी के अंदर,
सर कंप्यूटर सिस्टम सर। हाँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो ये 2 यूनिट है, दे आर Yes. बेसिकली नो theoretical sort of units, clear, and rest of are the applied topics. Any point you want to ask regarding the dictionary, list or tuple, whatever data structure we have covered till now? Someone is having some doubt, or is it all clear? Yes, Gurleen. क्लियर है सर सारे मैंने टॉपिक? प्रोग्राम बनाया था तो वो आपसे मैं पर्सनली बात करके रिजॉल्व कर लूंगा। ओ बेटा, अभी 1-2 दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ सर इस आवाज नहीं आ रही क्लास। सर आपके हाँ? अच्छे से। आवाज नहीं आ रही? हाँ, कई बार some of the times the internet connections goes on a unstable state, तो आवाज उस टाइम पे डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? और आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था? सर वो व्हाट्सएप पे। हाँ, सर व्हाट्सएप पे मैंने कौन सा था, एक मिनट सर। व्हाट्सएप पे एक तो मैंने आपको मंथ वाला भेजा था, हाँ, तो हाँ, उससे पहले मैंने डिक्शनरी भेजी थी सर, उसमें प्रॉब्लम थी मेन। ठीक है, ठीक जैसे है। हमने हाँ जी सर, हाँ, हाँ, जैसे बताओ। हमने फॉर में यूज करना था ना सर, लूप यूज करनी थी, हम्म, और फिर जो आवाज पढ़ा रहे थे जैसे सर हम उसके अंदर भी लिस्ट डाल रहे हैं ना सर, हाँ, हाँ, तो सर तो उसके ऐसे अंदर हमने ऐसे ही फॉर एक्सेस लूप होनी है यूज उसके अंदर करके भी। फिर लिस्ट यूज करनी है। नहीं असेस नहीं करनी सर, उसमें वैल्यू डालनी है लिस्ट के अंदर, कैसे डालनी है, तो फिर ऐसे सर कैसे लिंक करनी है, सर लिंक करना नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा, मतलब कि आप चाहते हो कि जैसे ये जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल डिस्कस की थी, आई थिंक जो हमने स्टार्टिंग से जहां शुरू किया था, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए क्वेश्चन। क्लियर? तो आप इसको लूप के हाँ थ्रू जी हाँ एक्सेस जी करना चाहते हो? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अब मैं देख लूंगा अभी आपका नहीं प्रोग्राम नहीं बता। सर, मैं चाहता हूँ जैसे आपने, हाँ, पूछो, पूछो। सर मैं चाह रहा हूँ जैसे ना ये हम्म, सब जो वैल्यूज है ना वो यूजर खुद इनपुट करे और उसको ऐसे स्टोर किया जाए जैसे ठीक है, फूड में दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ दैट जी इज सर। जैसे बेसिकली क्या है कि हम बेसिकली वी वांट टू इनपुट, हम डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लूप। ठीक है, आपका ये हाँ क्वेश्चन जी है सर। बेसिकली। सो यू वांट टू क्रिएट ए डिक्शनरी, और अगर डिक्शनरी के अंदर फर्दर लिस्ट भी है, सो दैट इज वी वांट टू डू विद द हेल्प ऑफ ए लूप। ये क्वेश्चन है इसका। हाँ जी सर। हाँ जी, और सर वो भी इनपुट वाला फंक्शन भी यूज करके सर। हाँ, हाँ, इनपुट का तो यूज होगा ही होगा डेफिनेटली। व्हेन वी आर बेसिकली, जब हम उसको हाँ पॉपुलेट जी करेंगे उसकी वैल्यूज को, तो वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ द इनपुट हाँ फंक्शन जी। आल्सो। यस, एनीवन एल्स हु गॉट दिस? यस, भव्या, क्या क्वेश्चन पूछा इसने? कुछ आइडिया है आपको व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड? गुरलीन? सर एक बार हमने पहले एक डिक्शनरी बनाई थी, उसके अंदर डिक्शनरी थी, शायद वो उसी की बात कर रहा है। हाँ, तो हाँ, आपने मतलब क्लास में किया था डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाना, तो हाँ। शायद वो ऐसा चाहता है कि डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट या टपल ऐड करें, तो वो यूजर इनपुट करे और फिर क्वेश्चन क्लियर है आपको? मतलब वो। तो हाँ आप जी भी सर। आप भी एक इसका मॉड्यूल जितना भी आपसे प्रोग्राम बनता है, सो यू एवरीवन मेक ए प्रोग्राम एंड सेंड इट टू मी, सो विल इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस दिस इशू। सो दैट्स ए गुड पॉइंट। यस, और किसी की कोई डाउट है या लाइक नो आई हैव सीन दैट नो द पर्सन हु इज बेसिकली अप्लाइंग दीज, उसी के पास क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज द पर्सन हु इज जस्ट लुकिंग एट द थिंग्स, so he will not generate any sort of questions in the dictionary. So एक जो हमने इसके अंदर जो अभी हमने वी हैव डन द प्रोग्राम दैट वाज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है दैट इज ना बेसिकली जितने भी प्रोग्राम अभी तक हमने किए हुए हैं। क्लियर? लाइक वी वांट टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो कोई भी प्रोग्राम है, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ठीक है,
तो व्हाट इज ए फैक्टोरियल? एक नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? कोई बता सकता है? So let's say we input a number. ठीक है, तो फैक्टोरियल के लिए कैसे, हाउ वी डू द कैलकुलेट द फैक्टोरियल? सो लेट्स से वी टेक ए वेरिएबल फैक्ट एंड फैक्ट इज इक्वल टू, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, लेट्स से f इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम कर देते हैं f इंटू आई। So let's say print fact. So we want to print the whatever the value of this factorial is. वो किसी ने बताया नहीं अभी तक मेरे को, व्हाट इज ए फैक्टोरियल? कोई पहले डेफिनेशन बता दे इसकी, क्या होता है फैक्टोरियल? यस भव्या? समय आए? यस यस। सर जैसे हमें एक नंबर दिया है, सपोज 4, तो फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल होगा 1 into 2 into 3 into 4, मतलब वो नंबर और उसके पीछे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज द फैक्टोरियल। ठीक है ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, सो दैट इज सही, यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई आना है। So this is how we are going to we have done the factorial. Now question is कि इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, this question we can convert into यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस प्रोग्राम को कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता है? ठीक है, कि हम फैक्ट कैलकुलेट करने के लिए, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए क्या हम फंक्शन क्रिएट कर लें। ठीक है, यस गुरलीन, इज इट पॉसिबल? हाँ सर, हो तो सकता है सर, कोशिश करें तो सर। हाँ देखो प्रोग्राम देखो, लुक एट दी, आई हैव गिवन यू दी हिंट, आपको हिंट दे दिया मैंने, प्रोग्राम गिवन है आप लोगों के सामने। ये जो आप इनपुटिंग है ना, इनपुटिंग, ये आप इनपुटिंग यहां से उठा के जो भी आप फंक्शन बनाओगे, लेट्स से इसको आप फंक्शन की बॉडी में से उठा लेना इसको। यहाँ पे आपको फैक्ट का बनाना पड़ेगा, लाइक जो भी वैल्यू आपने यहाँ से पास करनी है n, ठीक है, और यहाँ पे आपका फंक्शन बनेगा डेफ फैक्ट, और यहाँ पे आप कोई भी दूसरा वेरिएबल ले लो x। काफी प्रोग्राम मैंने बना लिया है,
बाकी आपने बनाना है। इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, फॉर की जगह यहाँ पे अब रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न। अब एफ हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, यहाँ पे वो फैक्ट को साइन होगा एंड विल बी एबल टू प्रिंट द वैल्यू। और यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। किसमें था ये? ठीक है, अगर ये प्रोग्राम है हमारे पास, so I will be sharing the code with you. So here from the paint you can see the code. ठीक है जी, तो इस प्रोग्राम को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? वट एवर द कोड इज विद मी, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? वट एवर द कोड आई हैव रिटन, यस श्रिया, ये जो कोड लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करो। सर सबसे पहले n की वैल्यू एंटर की जाएगी, यूजर एंटर करेगा n की वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, और प्रिंट फंक्शन की वजह से वो जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। सो बेसिकली जब भी हम इस प्रोग्राम को हमने देखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में होना चाहिए कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हो रही है। सो दैट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। सो नेवर लुक एट द कोड, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है। क्लियर? सो दिस इज द स्टेप नंबर, यहां से ये है हमारा स्टेप नंबर 1। क्लियर? तो जहां से हमारा फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। यस यस श्रिया, यू कैन कंटिन्यू नाउ। सर उसके बाद n की वैल्यू एंटर करने के बाद वो प्रिंट के हेल्प से ऊपर डिफाइन फंक्शन के पास चल जाएगा, फैक्ट जो फंक्शन का नेम है। हाँ हाँ, और उसके बाद जो n की वैल्यू एंटर की जाएगी वो 1 से लेकर उस वैल्यू तक लूप चलेगी और हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और f एंड में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जैसे ये देखो, ये जो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कोई इलैबोरेट करता है, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट इस स्टेप को मैं ऑलरेडी जितने अभी लेक्चर्स लिए हैं सभी में मैं इस स्टेप का एक नाम लेता हूं। व्हाट दिस स्टेप इज कॉल्ड। सो भव्या इज रेडी। यस भव्या, आप बताओ क्या इस स्टेप को क्या बोलते हैं? सर इट इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन। यस यस, ये कॉलिंग फंक्शन है। अब यहां से जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहां से ट्रांसफर होके यहां पे चला जाएगा। क्लियर? इस फैक्ट फंक्शन में। और n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू वो असाइन हो जाएगी वेरिएबल x को, जो भी n के अंदर वैल्यू थी, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो x में आ जाएगी। और ये फैक्ट f की वैल्यू 1 क्यों रखी हुई है? यस, अदर देन भव्या के अलावा एनी अदर स्टूडेंट, व्हाई वी हैव इनिशियलाइज्ड f इज इक्वल टू 1? यस श्रिया, आप भी रहने दो। श्रिया एंड भव्या आर एक्सक्लूडेड। यस गुलीना, बताओ।
सर इसमें मेरे हिसाब से 2 रीजन हो सकते हैं। पहली बात, एफ को अगर हम 0 रखेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है सर। दूसरी ये हो सकती है क्योंकि फैक्टोरियल हमने निकालना है और 1 हर एक फैक्टोरियल में होता है। हाँ, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, जब भी हम हाँ सर, ये तो जब भी हम किसी सीरीज का सम करते हैं ना, सम करते हैं, तो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के अंदर 0 ऐड करते हैं तो उस चीज में कोई इफेक्ट नहीं आता, मींस वो उतनी की उतनी रहती है वो चीज। सिमिलरली अगर हम किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही क्वांटिटी आती है हमारे पास। अगर हम 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 10 आएगा, अगर हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 20 आंसर आएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं तो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं विद 1, और जब भी हम कोई चीज में कुछ एडिशन ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमने n नंबर्स का सम करना है, तो हम f को इनिशियलाइज करेंगे विद 0। सो इसमें क्योंकि ये फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसलिए इसको हमने बेसिकली इनिशियलाइज किया बाय 1। और जैसे अभी बताया कि जैसे 4 का जो फैक्टोरियल है, नो द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 4 इंटू दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स जो नंबर आपने इनपुट किया वहां से लेके उसकी 1 तक मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, ठीक है। और बेसिकली हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में किया हुआ, हमने इसको 1 से लेके 4 की तरफ गए हैं। हमने वेरिएबल आई को शुरू किया है 1 से लेके, जितना आपने नंबर इनपुट किया है वहां तक ये मूव करेगा। तो यहाँ पे ठीक है, बेसिकली इसको हम x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने n लिखा हुआ है वी कैन टाइप हियर x आल्सो। तो ये नंबर 1 से लेके n तक, क्योंकि n+1 में n+1 एक्सक्लूड हो जाएगा और ये नंबर कहां तक मूव करेगा, n तक मूव। और बाकी तो ये जस्ट हमने सिंपल एक लॉजिक लगाया है, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करने के लिए ये वाला लॉजिक है। और जो एंड रिजल्ट आएगा हमारे पास वो f में आ जाएगा, और f क्या करेगा, f उस वैल्यू को फिर इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा, और प्रिंट से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट से वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा अभी तक हमने 4-5 टॉपिक किए हैं, बट इन 4-5 टॉपिक से वी कैन डू नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पहले प्रोग्राम किए थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम फंक्शन से भी कर सकते हैं, isn't it? तो वी हैव, ये फंक्शंस बनाने का कोई बेनिफिट बता सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फंक्शंस, कोई बता दो आप में से। यस, भव्या इज रेडी। और बाकी क्लास में भी पार्टिसिपेट, आई हैव टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन आल्सो। यस, अजय प्रताप आप बताओ बेटा। सर प्रोग्राम इजी हो जाता है। वेरी गुड, प्रोग्राम इजी हो जाता है, बहुत अच्छा आंसर किया है। यस, वी हैव नाउ हर्षिता आप बताओ। हर्षिता ने तो बिजनेस स्टडी हमारे सामने रख दी है। यस महक। सर प्रोग्राम बनाने पे हमें बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिंपली उसका नाम लिख के वो यूज कर सकते हैं कोड। हाँ 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 हाँ। एक आपने पढ़ा होगा वर्ड मॉड्यूलर अप्रोच, कोई मॉड्यूलर अप्रोच बता सकता है मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है? यस गुरलीन सिंह। यस भव्या। Sir, I have not heard this term. ओ बेटा वो फंक्शन ही है, फंक्शन को ही हम मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं। बट बेसिकली फंक्शन को क्या चीज करते हैं, बेसिकली फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन का काम होता है एक चीज को बाइफरकेट करके उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे लेट से हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो अगर हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो एक उसके अंदर सम ऑपरेशन है, एक उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, एक उसके अंदर डिवीजन है। क्लियर, लाइक दिस वी हैव 4 ऑपरेशंस। तो हम क्या कर सकते हैं, उन सभी को अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं, और उन सभी फंक्शंस को एक कैलकुलेटर के अंदर डाल देंगे, तो वी कैन डू दी दिस कैलकुलेटर, जो सिंपल कैलकुलेटर हमारे पास बन जाएगा। तो फंक्शन का काम यही होता है, दैट इज बेसिकली टू इंप्लीमेंट द मॉड्यूलर अप्रोच, किसी चीज को बाइफरकेट करके एंड देन वी कैन क्लब टुगेदर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाने के लिए 4 फंक्शंस बना लिए, सम फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लिकेशन बना लिया, डिवीजन बना लिया, सब्सट्रैक्शन बना लिया, और बाद को
बाद में उनसे हमने क्या कर लिया, एक कैलकुलेटर डेवलप कर लिया। सो फंक्शन का काम यही होता है टू इम्प्लीमेंट दी मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच मींस कि एक चीज को हम बाइफरकेट करके एंड देन वी कैन बेसिकली join these things. Yes. Yes, any other question you have? ठीक है, so we have so many tasks to perform. Clear? तो ये ना कि अभी रेस्ट करना आप लोग, जितने भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, try to basically practice all those things. So then you will be very comfortable in Python also. So thank you very much, beta. Thank you everyone for being in the class. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. sir.